پاکستان کے ضلع قصور کے اس نوجوان مجاہد کی کہانی جس نے اسرائیل کی سرحدوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ اسلام کی بقا کی جنگ لڑنے والے اس مجاہد کی طویل داستان سننے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ کہانی کی تمام ترقصات آپ تک ہمیشہ پہنچتی رہیں۔ عمارت پر گارڈ اور بڑھا دیے گئے ہیں۔ باہر کی فضا بہت خراب ہے۔ دوسری بستی میں اب بھی تلاشیاں ہو رہی ہیں۔ انہوں نے کہا، تلاشیاں؟ ہاں، مارگسیا کا ڈرائیور لون اپنی کار کی ڈکی میں مردہ پایا گیا ہے اور اس کی لاش کئی دن پرانی ہے۔ لون؟ میں نے چونکنے کی اداکاری کی۔ میرا دل سینے میں اچھل پڑا تھا۔ ہاں، حیرت کی بات یہ ہے کہ اسے چند گھنٹے پہلے زندہ دیکھا گیا تھا۔ کیا کہہ رہی ہو تم؟ اب تفصیل تو فالکر ہی کو معلوم ہوگی۔ میں نے تو صرف چند باتیں سنی ہیں۔ مس جینڈولن بولی۔ اوہ، فالکر کو بلاؤ۔ مجھے حالات سے کیوں بے خبر رکھا گیا؟ میں نے ناخوشگوار لہجے میں کہا۔ میں نے منع کر دیا تھا فالکر کو، ورنہ وہ تو تمہارے پاس آ رہا تھا۔ میں نے اسے کہہ دیا تھا کہ اس وقت تمہیں پریشان کرنے کی بجائے وہ اپنی ذمہ داری سنبھالے۔ اوہ، بلاؤ اسے۔ میں اس سے حالات معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ اگر مجھے تفصیلی حالات معلوم نہیں ہوئے تو رات بھر سو بھی نہیں سکوں گا۔ مس جینڈولن فالکر کو بلانے چلی گئی۔ فالکر گٹھے ہوئے بدن کا نوجوان آدمی تھا۔ کمرے میں اندھیرا ہونے کے باوجود میں نے اس کے خد و خال اچھی طرح ذہن نشین کر لیے تھے۔ فالکر نے مجھے پوری کہانی سنائی اور اس کا لب لباب یہ تھا کہ ڈکی سے لون کی لاش برآمد ہوئی ہے اور ایک خطرناک شخص اس کے میک اپ میں رہ کر یہ تمام حرکتیں کرتا رہا ہے۔ یہ وہی شخص تھا جو فرار ہو گیا تھا۔ کیا وہ بہت خطرناک آدمی ہے؟ میں نے پوچھا۔ یہی معلوم ہوتا ہے۔ سیکرٹری صاحب خود بھی پریشان نظر آ رہے تھے۔ لانچیں اسے تلاش کرنے کے لیے سمندر میں دور دور تک نکل گئی ہیں۔ سیکرٹری صاحب نے ہیلی کاپٹر بھی منگوائے ہیں اس کام کے لیے۔ تم اپنے کام میں مستعد رہو، ڈیوٹی سخت کر دو، رات کو چیکنگ کرو۔ کاش میں بیمار نہ ہوتا۔ آپ بالکل مطمئن رہے نیگی صاحب۔ سیکرٹری صاحب نے خود ڈیوٹیاں چیک کی ہیں اور مطمئن ہو گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، جاؤ، اور اگر کوئی خاص بات ہو تو مجھے اطلاع ضرور دینا۔ بہتر جناب۔ فالکر باہر چلا گیا۔ مس جینڈولن سے بھی تھوڑی دیر کے بعد جان چھوٹ گئی تھی، لیکن ان کا حدود اربا میری سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ نہ جانے ان کا مسٹر نیگی سے کیا تعلق تھا۔ ویسے ان کا لہجہ خطرناک تھا۔ رات کو میں نے رگن کو بھی واپس بھیج دیا اور اب میں سرخ کوارٹر میں تنہا تھا۔ کافی رات گئے جب ماحول پر گہری تاریکی اور سناٹا مسلط تھا۔ میں خاموشی سے اپنے کمرے کے دروازے سے باہر نکل آیا۔ پہلے میں نے باہر کا جائزہ لیا اور اس کے بعد اس گملے کے پاس پہنچ گیا جس میں مسٹر نیگی آرام کر رہے تھے۔ سوری مسٹر نیگی، مجھے افسوس ہے کہ آپ کو میری وجہ سے تکلیف اٹھانا پڑی، لیکن مجبوری تھی۔ اب آپ سے درخواست ہے کہ خاموشی سے یہاں آرام کرتے رہیں اور کوئی ایسی حرکت نہ کریں جس سے مجھے پریشانی ہو۔ میں نے اس تمام سامان کو چیک کیا جو اس گملے پر رکھا ہوا تھا۔ اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی تھی، جس سے مجھے اطمینان ہوا۔ یوں بھی وہ کوئی قابل توجہ جگہ نہیں تھی۔ میں وہاں سے مطمئن ہو کر واپس کمرے میں آ گیا۔ میری تلاش ہو رہی تھی پورے جزیرے اور آس پاس کے سمندر میں۔ بہرحال میں اپنی زندگی کے دلچسپ ترین دور سے گزر رہا تھا اور میں نے طویل عرصے تک اس زندگی کے خواب دیکھے تھے اور یہی ان کی تعبیر تھی۔ میں تو اسے اپنی تقدیر کی معراج سمجھتا تھا۔ فلسطین کا معاملہ نیا نہیں تھا۔ اسرائیل کے قیام کے بعد سے آج تک جو واقعات پیش آئے تھے، اہل اسلام ان پر خون کے آنسو روئے تھے۔ بیت المقدس کی آزادی کے لیے ہمیشہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے تھے۔ میں نے قصور کی مسجد میں جمعے کی نماز کے بعد مولوی صاحب کی رکعت آمیز آوازیں سنی تھی۔ اے میرے معبود، بیت المقدس کو آزادی عطا فرما، فلسطینی مجاہدین کی حفاظت فرما، انہیں کامرانی سے ہمکنار کر۔ اس وقت میرے معصوم ذہن میں یہ باتیں نہیں آئی تھی، لیکن وہ الفاظ مجھے یاد تھے۔ امریکہ میں میں نے کئی بار اس موضوع پر مضامین پڑھے تھے، اخبار میں فلسطین سے متعلق خبریں پڑھی تھی، لیکن میرے دل میں کوئی خاص جذبہ بیدار نہیں ہوا تھا۔ لیکن اس دن ایبرن ہال میں وہ شرمناک تقریر مجھ سے برداشت نہیں ہو سکی اور میرے سینے میں جذبات کا سمندر ابل پڑا، اور اس کے بعد سے آج تک میں نے صہیونی نظام سے نفرت کی تھی۔ میری دلی خواہش پوری ہو گئی تھی۔ آج میں بھی فلسطینی مجاہدین میں شامل تھا۔ میں پاکستانی تھا لیکن فلسطین بھی میرا تھا۔ میں نے علامہ اقبال کا ترانہ پڑھا تھا، چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا۔ یہ سب کچھ ہمارا تھا اور غاصبوں کو بالآخر یہاں سے نکلنا ہی تھا۔ میرے لیے اس سے زیادہ پرمسرت بات اور کیا ہو سکتی تھی کہ میں اپنی زندگی کے سب سے حسین دور میں داخل ہو گیا تھا۔ یہ ساری جدوجہد صہیونیت کے خلاف تھی اور مجھے خود پر ناز تھا۔ حالات کیسے بھی ہوں، میری زندگی کے ایک ایک لمحے کا حساب خدا کے ہاں موجود ہوگا۔
बस यही तस्वुर मेरी रूह का सुकून था और सुकून के इस रूह परवर एहसास के साथ ही मैं सो गया। खूब गहरी नींद सोया और सुबह सूरज चढ़े आंख खुली। दिन को 11 बजे फाल्कर ने आकर सब ठीक होने की इत्तला दी। मैंने आंखों की बीमारी की वजह से कमरे में रोशनी करने की इजाजत नहीं दी थी। मिस जैंडोलन से ना जाने आज कैसे जान बची रही, वो ना जाने कहाँ मसरूफ थी। बहरहाल मुझे उस खतरनाक औरत के ना आने की खुशी थी। ना जाने क्यों मैं उसके कुर्ब से नर्वस सा हो जाता था। सारा दिन पुरसकून गुजरा। शाम हो गई। मैं बाहर के हालात पर निगाह रखे हुए था। जरा सी बेचैनी भी थी। ना जाने मेरी तलाश अब किस मरहले में दाखिल हो गई है, क्या क्या अक़दामात किए गए हैं। ना जाने क्या वक्त हुआ था। मेरे क्वार्टर में खामोशी और सन्नाटा था। सारा दिन कमरे में पड़े पड़े बोरियत हो गई थी। चुनाचे मैं बाहर निकल आया। मुझे कुछ अफरा तफरी सी महसूस हुई थी। बाहर कुछ ज्यादा आवाजें सुनाई दे रही थी। जरूर कोई खास बात थी। मैंने जल्दी से क्वार्टर का बाहरी दरवाजा बंद किया और उसके बाएं समत की एक दीवार पर चढ़कर छत पर पहुंच गया। इसे खुशबहती ही कहा जा सकता था कि छत पर मुझे छुपने के लिए एक माकूल जगह मिल गई। क्वार्टर की पुश्त पर एक बहुत तनावर दरख्त फैला हुआ था, जिसकी शाखों ने क्वार्टर की पूरी छत ढांप ली थी। ये शाखें खूब घनी थी और इनमें आसानी से छुपा जा सकता था। मैं शाखों में छुपता छुपाता क्वार्टर के सामने के सिरे पर पहुंच गया। यहाँ से बाहर के मनाजर साफ देखे जा सकते थे। 10-12 स्टेन गन बरदार एक हिसार सा बनाए खड़े हुए थे और इस हिसार में इमारत के सारे मुलाजमीन और दूसरे अफराद मौजूद थे। चौड़े चेहरे वाला एक शख्स दूसरे 2-3 अफराद के साथ हिसार के अंदर मौजूद लोगों को चेक कर रहा था। फाल्कर भी उनके साथ इस कार्रवाई में हिस्सा ले रहा था। ये चौड़े चेहरे वाला शख्स ना जाने कौन था। बहरहाल इस बात में शक व शुबा नहीं रह गया था कि ये कार्रवाई भी मेरी तलाश का एक हिस्सा थी। वो तमाम लोगों के चेहरे एमोनिया से धुलवा कर उन्हें देख सकते थे, क्योंकि इस काम के लिए उन्हें कई दिन दरकार होते। लेकिन अपने तौर पर वो इस बात का जायजा ले रहे थे कि कहीं मैं इन मुलाजमों के दरमियान तो मौजूद नहीं हूँ। बड़ी खौफनाक बात थी। मुझसे भी जरूर पूछा जाएगा और मैं इन लम्हात के लिए खुद को तैयार करने लगा। 2 बातों में से एक का फैसला करना था। या तो मैं यही छुपा रहूं और उनके सामने ना आऊं, या फिर ये खतरा मोल ले लूं। मेरा मेकअप इतना मामूली नहीं था कि आसानी से उन लोगों को मेरे बारे में पता चल जाता, मगर इस मरहले से गुजर गया तो फिर काफी आसानियां हो जाएंगी। मगर वो चौड़े चेहरे वाला, मुमकिन है वो बहुत तेज निगाह रखता हो। तकरीबन 1 घंटे तक ये काम जारी रहा और फिर चौड़े चेहरे वाले शख्स ने हाथ उठाकर कुछ कहा। उसके अल्फाज मेरी समझ में नहीं आ सके थे, लेकिन इसके बाद स्टेन गन वालों का हिसार खत्म हो गया। तमाम मुलाजमीन मुंतशिर हो गए थे। मैंने दिल ही दिल में खुदा का शुक्र अदा किया। एक बार फिर मेरी जान बच गई थी। गालिबन उन्हें अंदाजा हो गया था कि ये एक बेमकसद कार्रवाई है और इससे कोई नतीजा बरामद नहीं होगा। लेकिन ये अंदाजा भी हो गया था मुझे कि वो मेरी तलाश में नाकाम होकर अब इस लाइन पर सोचने लगे हैं कि मुमकिन है मैं किसी दूसरे मेकअप में हूँ। मगर ये तस्वुर ज्यादा खौफनाक था कि वो मेरे यहाँ मौजूद होने के बारे में भी सोच सकते हैं। हालांकि मैं उन्हें ये तासुर देना चाहता था कि मैं एक आम आदमी हूँ और उन लोगों से खौफजदा हूँ, यानी यहाँ से निकल जाने का ख्वाहिशमंद हूँ। बहरहाल उस वक्त ये आफत टल गई थी, लेकिन अब कुछ करना था। इस बारे में मैं सारी रात सोचता रहा और जब सुबह होने वाली थी तो मैं एक फैसला करने में कामयाब हो गया था। दूसरी सुबह मिस जैंडोलन मुझसे मुलाकात करने आई तो मैंने मुस्कुराते हुए उनका इस्तकबाल किया। तुम्हारे इस कमरे में तारीकी बहुत है, रोशनी कर दूं? उन्होंने नर्म लहजे में पूछा और मैंने अपनी जगह से उठकर लाइट जला दी। गुड, मिस जैंडोलन ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हारी हालत खासी बेहतर नजर आ रही है। मैंने कहा था ना कि मामूली सा नजला है, ठीक हो जाएगा। इस सिलसिले में परेशान होना बेकार है। आंखें ठीक है? हाँ, नजला हमेशा मेरी आंखों को मुतासिर करता है। वैसे मेरी गैर मौजूदगी में फाल्कर क्या करता रहा है? कोई शिकायत नहीं हुई कहीं से। फाल्कर ने बखूबी सारे मामलात संभाले हुए हैं। फिर भी आजकल हालात ठीक नहीं है। गार्ड्स को बहुत चाको चौबंद रहना पड़ता है। क्यों, क्या कोई खास बात है? वही मफरूर शख्स सब के लिए मुसीबत बना हुआ है, अभी तक हाथ नहीं आया। वैसे खतरनाक आदमी मालूम होता है। लोन को कत्ल करके वो इस इमारत तक आ गया और पूरे दिन अपनी तलाश में सरगर्दां रहा, जबकि लोन की लाश कार की डिक्की में मौजूद थी। ये मामूली दिल गुर्दे वाले का काम नहीं है। वाकई, मैंने मसनूई तासुर के साथ कहा। मगर वो है कौन? खुदा जाने। कल इमारत के तमाम मुलाजमीन को सेक्रेटरी साहिब ने खुद चेक किया था। इमारत के मुलाजमीन को क्यों? बस ख्याल था कि कहीं वो किसी और के मेकअप में तो यहाँ दाखिल नहीं हो गया है। क्या वो मेकअप का माहिर है? मुझे इस बारे में ज्यादा तफसीलात मालूम नहीं, मिस जैंडोलन ने कहा। मैं दिल ही दिल में उस शख्स के बारे में सोच रहा था जो इन लोगों को चेक कर रहा था।
तो वो सेक्रेटरी है, लेकिन कमबख्त अजीब बेहुदा सा इंसान था। मैं उसका रूप भी दार सकता था और वो बड़े काम की चीज था। मिस जैंडोलन थोड़ी देर तक बातें करती रही, फिर वो चली गई और मैं बाहर निकल आया। मैंने मिस्टर नेगी की कब्र देखी जो गमले में थी। उसकी हिफाजत करते रहना जरूरी था। फिलहाल यही मेरी बचत का एक जरिया था। अगर उसका राज फाश हो जाता तो मेरा खेल भी खत्म था। अपने क्वार्टर से निकलकर मैं हालात का जायजा लेता फिरा। फाल्कर की निगाह मुझ पर पड़ी तो वो तेजी से मेरे पास पहुंचा। ओह मिस्टर नेगी, आपने क्यों जहमत की? कुछ और आराम कर लेते। अब मैं ठीक हूँ फाल्कर, कोई उलझन तो नहीं है? नहीं जनाब, कोई खास बात नहीं है, बस जरा ड्यूटियां बदलना पड़ी हैं। दाखिली दरवाजों पर खास तौर से निगरानी सख्त करनी पड़ी है हमें। मफरूर का मामला है? मैंने पूछा। हाँ, कोई खास आदमी मालूम होता है, फाल्कर ने जवाब दिया और मैं उसके साथ इमारत में दाखिल हो गया। ये अंदरूनी इमारत थी, यानी वो जगह जहाँ मिस्टर हेनरी का कयाम था। मेरे ड्यूटी गार्ड मुस्तैद थे। अब अंदाजा हुआ कि नेगी महज निगरान था, लेकिन रोब-दाब का आदमी था। तमाम अमला मेरे सामने मुअद्दब था। इमारत के अंदरूनी हिस्से के लोग भी मेरी इज्जत कर रहे थे। उस वक्त हम दोनों यानी मैं और फाल्कर एक राहदारी से गुजर रहे थे कि दफातन एक कमरे के दरवाजे से वही चौड़े चेहरे वाला शख्स निकल आया। हम दोनों को देखकर वो ठिठक गया। फिर उसने कहा, नेगी यहाँ आओ, मैं तुम्हें बुलवाने ही वाला था। ओके फाल्कर, तुम जाओ और सुनो, पूरी इमारत के चक्कर लगाते रहो, बल्कि 2 आदमी इस काम के लिए मखसूस कर दो कि वो एक घंटे के बाद इमारत के अहाते का चक्कर लगाते रहे। मैंने जोर से कहा ताकि सेक्रेटरी भी सुन ले। ठीक है जनाब, फाल्कर ने कहा और चला गया। मैं उस कमरे में दाखिल हो गया जिससे सेक्रेटरी बाहर निकला था और अब दोबारा कमरे में दाखिल हो गया था। कुछ जरूरी हिदायत हैं तुम्हारे लिए नेगी। हुक्म जनाब, मैंने अदब से कहा। सूरत हाल तुम्हारे इल्म में है। मैं तुम्हारे स्टाफ में कुछ और लोगों का इजाफा करना चाहता हूँ, जैसा आप मुनासिब ख्याल फरमाएं जनाब, लेकिन इसकी जरूरत तो नहीं है। ओ नेगी, जरूरत है। तुम्हारे गार्ड सिर्फ मुस्तैद सिपाही हैं, वो ज्यादा चालाक नहीं है, लेकिन वो कमबख्त बहुत चालाक मालूम होता है। मुझे खदशा है कि वो किसी तरह इस इमारत में दाखिल ना हो जाए। आखिर वो है कौन? मैंने किसी कदर उलझे हुए अंदाज में कहा। बस यार, क्या बताया जाए, हमारे लिए किसी नई उलझन का इजाफा होता ही रहता है। मादाम मार्क्सिया का मंजूर नजर है। सेक्रेटरी ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा। मैं नहीं समझा जनाब, इस वक्त मुझसे सवालात ना करो नेगी, मैं बहुत मसरूफ हूँ। 6 आदमी तुम्हें दे रहा हूँ, उन लोगों को ले जाओ और ड्यूटी गार्ड से उनका तारुफ करा दो। ये सब दाखिली दरवाजों पर रहेंगे और आने जाने वालों पर खुसूसी निगाह रखेंगे। इसके अलावा रात की ड्यूटी में तुम खुद यहाँ इमारत में रहोगे, सारी रात यहाँ गश्त करोगे। तुम्हारे अलावा किसी और पर भरोसा नहीं किया जा सकता। एक सवाल और करूंगा जनाब। हाँ पूछो, क्या उस शख्स से इमारत में किसी को खतरा है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अव्वल तो वो इमारत में दाखिले की जुर्रत ही नहीं करेगा, किसे पड़ी है कि वो खुद मौत के मुंह में चला जाए। लेकिन वो शख्स जिस कदर चालाक है, इसके तहत होशियार रहना जरूरी है। मुमकिन है वो इस इमारत ही को अपने लिए बेहतरीन पनाहगाह तस्वुर करे। ओके सर, आप मुतमईन रहें, मैंने कहा। आओ मैं तुम्हें उन लोगों से मिला दूं जिन्हें तुम ये ड्यूटी सौंपोगे। सेक्रेटरी ने कहा। 6 अफराद एक कमरे में मौजूद थे, सब के सब लबनानी ही मालूम होते थे। सेक्रेटरी ने उनसे मेरा तारुफ कराया और फिर वो चला गया। मैंने उसकी मर्जी के मुताबिक उन सब को उनकी ड्यूटियों पर तैनात कर दिया। वैसे ये एक दिलचस्प काम था। मैं खुद अपने लिए इंतजामात कर रहा था। ऊंट किसी करवट बैठे। मुमकिन है मैं यहाँ अपने तौर पर मुकम्मल कामयाबी न हासिल कर सकूं, लेकिन ये लोग मुझे जिंदगी भर याद रखेंगे। जब उन्हें हालात का इल्म होगा तो वो अपने बाल नोचते और चेहरे घसूटते रह जाएंगे। सारा दिन मसरूफ गुजरा। रात को मैं इमारत में आ गया। मैंने ड्यूटी गार्ड्स को होशियार कर दिया था। इस दौरान हेनरिक मुझे एक बार भी नजर नहीं आया था। उस वक्त मैं उसकी रिहाइश गाह के आसपास ही मौजूद था। अपनी दानिश में ये लोग अभी तक मेरे साथ चूहे बिल्ली का खेल खेलते रहे थे, लेकिन अब मैं उनके साथ चूहे बिल्ली का खेल खेल रहा था। रात गहरी होती जा रही थी। चारों तरफ खामोशी छाई हुई थी। मैंने इमारत से बाहर कदम नहीं निकाला और अंदर ही अंदर गश्त करता रहा। उस वक्त तकरीबन रात का 1 बजा था। मैं हेनरिक की ख्वाबगाह के सामने से गुजर रहा था कि दफातन ख्वाबगाह का दरवाजा खुला। बाहर आने वाला हेनरिक ही था। मुझे देखकर वो ठिठक गया। शब ख्वाबी के लिबास में वो अजीब नजर आ रहा था। उसने एक लंबी टोपी पहन रखी थी। नेगी, उसने मुझे आवाज दी और मैं दौड़ता हुआ उसके करीब पहुंच गया। हेनरिक ताज्जुब से मुझे देख रहा था। अंदर आओ मेरे साथ, उसने कहा और दोबारा अपनी ख्वाबगाह में दाखिल हो गया। एक लम्हे के लिए मेरे बदन में सर्द लहरें दौड़ गईं, लेकिन फिर मैंने खुद को संभाल लिया और खामोशी से उसकी ख्वाबगाह में चला गया। बहुत खूबसूरत ख्वाबगाह थी, आला दर्जे के फर्नीचर से आरास्ता। तुम यहाँ क्या कर रहे थे नेगी?
सेक्रेटरी साहब ने मेरी ड्यूटी यहाँ लगाई है सर। मैंने अदब से जवाब दिया। हाँ, हालात ऐसे ही परेशान कुन है नेगी, तुम्हारी यहाँ पर ड्यूटी जरूरी है। तुमने इससे कबल ये ख्वाबगाह देखी है? नहीं जनाब। कमाल है, तुम मुनज़्ज़म आला हो। मेरा तो ख्याल था कि तुम इस ख्वाबगाह की सफाई भी अपनी निगरानी में ही कराते होगे। मैंने यहाँ अपने मातहत फाल्कर को तैनात कर दिया है जनाब। आज तक मुझे कोई शिकायत नहीं मिली, मैंने जवाब दिया। हेनरी के ये सवाल बेमानी नहीं थे, जरूर इसके जहन में कोई खटक पैदा हो गई थी। मैंने अचानक नई सूरत हाल पैदा हो जाने से अपनी कमजोरियों पर काबू पाने की भरपूर कोशिश की और संभल गया। हाँ, फाल्कर एक होशियार और मुस्तैद नौजवान है। वाकई कभी कोई शिकायत की बात नहीं हुई, लेकिन ये एजाज उसे भी हासिल ना हो सका होगा कि उसने पूरी ख्वाबगाह देखी हो। आओ मैं तुम्हें इसके बारे में तफसीलात बताऊं। आओ, हेनरिक ने कहा। मेरी समझ में नहीं आया कि वो मुझे कहाँ ले जाना चाहता है। ख्वाबगाह मेरे सामने थी। हेनरिक एक दीवार के करीब पहुंच गया। उसने दीवार में नस्ब कोई बटन दबाया और एक पूरी दीवार सरक कर दूसरी तरफ हट गई। हेनरिक मेरी तरफ देखकर मुस्कुराने लगा। क्या ख्याल है? हैरत अंगेज जनाब, यहाँ ऐसी किसी चीज का तस्वुर भी नहीं किया जा सकता था। आओ अंदर आओ, मैं तुम्हें इस जजीरे के अजायबात से रोशनास कराऊं। आ जाओ अंदर। हेनरिक इस जगह से गुजर कर दूसरी तरफ पहुंच गया। दूसरी समत सीढ़ियां बनी हुई थी, चौड़ी सीढ़ियां। हेनरिक निहायत इत्मीनान से वो सीढ़ियां उतर रहा था। मैं भी उसके साथ सीढ़ियां तय करने लगा। सिर्फ चंद अफराद हैं जो इस जगह से वाकिफ हैं, जनरल शैरून, मार्शल गोयान और मेरा सेक्रेटरी। बस तुम चौथे आदमी हो जिसे मैं यहाँ लाया हूँ, उसने आगे बढ़ते हुए कहा। दूसरी तरफ तारीकी थी, लेकिन आखिरी सीढ़ी अबूर करने के बाद हेनरिक ने ना जाने क्या किया कि चारों तरफ रोशनी फैल गई। सफेदो दोदिया रोशनी जो आंखों को बुरी नहीं मालूम हो रही थी। मैंने उस रोशनी में उस अजीबो गरीब जगह को देखा। अजायबात में शुमार किया जा सकता था इसका। ये एक अजीम शान हाल था जो किसी स्तून के बगैर नजर आ रहा था। इंसानी हाथों की तामीर थी। दीवारों में अलमारियां नजर आ रही थी। जगह जगह अजीब तर्ज की मशीनें मौजूद थीं। एक जगह चंद पिंजरे बने हुए थे, जिसमें से एक पिंजरे में दो स्याह फार्म नजर आ रहे थे। वो दोनों रोशनी देखकर खड़े हो गए थे। आओ, हेनरिक ने कहा और मैं बेख्तियार आगे बढ़ गया। रास्ते में मैंने एक छोटा सा हौज देखा जिसमें भरे हुए पानी पर काई सी जमी हुई थी। उस हौज पर शीशे का ढक्कन था। हेनरिक उसके ऊपर से गुजर गया था। मुझे भी उसके ऊपर से गुजरना पड़ा, लेकिन मैं पूरी तरह होश में था। कोई खास बात नहीं हुई। हम उस हाल के वस्त में थे। हेनरिक एक बड़ी मेज के पीछे बैठ गया और फिर उसने मुझे भी एक कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। सर, अगर मुझे इजाजत हो तो। हाँ, क्या कहना चाहते हो? हेनरिक मुस्कुराते हुए बोला। मैं अपनी ड्यूटी पर हूँ। यानी इस इमारत की निगरानी? जी हाँ, इस इमारत के लिए तुम फिक्रमंद ना हो। यहाँ बैठकर भी तुम अपनी ड्यूटी अंजाम दे सकते हो। बैठो, उसने कहा और मैं उस कुर्सी पर बैठ गया। वो एक खास डिजाइन की कुर्सी थी।